اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھیوں، آج شب عاشور شروع ہو چکی ہے۔ امام حسین کی زندگی کی آخری رات آ گئی۔ آج کچھ بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ میں رو لوں، کچھ آپ لوگ رو لیں۔ خدا جانے اس کے بعد زندگی ہے یا نہیں۔ یہ رونا وہ رونا ہے کہ انبیاء روتے رہے، مرسلین روتے رہے اور گریاں رہے ہمیشہ۔ ائمہ طاہرین کی وصیتیں ہیں کہ کچھ ہو جائے، دنیا کتنی ہی کروٹیں لے، مگر حسین کو اور حسین کے غم کو بھول نہ جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشورہ کی صبح اس طرح سے گریہ کرنا جس طرح ایک ماں اپنے جوان پسر کی موت پر روتی ہے۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد آج شب کے کچھ حالات عرض کرنے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا، آج تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ دین کا کمال جن کی وجہ سے ہوا، آج ان پر تیسرا دن ہے کہ بھوک اور پیاس سے ان کے بچے تڑپ رہے ہیں اور دشمنان دین ہر طرح سے آسائش و آرام میں ہیں۔ جن کی وجہ سے اسلام بنا، جن کی وجہ سے نعمتیں تمام ہوئیں، خدا گواہ ہے جس کو بھی لفظ اسلام ملا ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے، کچھ باتیں چاہتا ہوں کہ اس کے ذیل میں آپ کے گوش گزار کروں، پھر اصل مطلب شروع کروں گا۔ 70ویں پارے کے آخری رکوع میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں، تم اس طرح جہاد کرنا پروردگار عالم کی راہ میں جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ خدا نے تمہیں کو برگزیدہ بنایا ہے، تمہیں کو تو منتخب کیا ہے۔ اب آپ اندازہ فرماتے جائیں، یہ عام لوگوں سے کلام نہیں ہے، مخصوص حضرات ہیں جن سے خدا فرما رہا ہے کہ تم اس طرح جہاد کرنا کہ جو حق جہاد ہے۔ ایک دوسری جگہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خدا سے اس طرح ڈرنا کہ جو حق ہے ڈرنے کا۔ میرے ساتھیوں، یہ حکم کیا ہمارے لیے تکلیف مالا یطاق ہے؟ نہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، کئی جگہ قرآن مجید میں ہے کہ خدا کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی کہ اس میں گنجائش ہے، یا جتنا وہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ہم ایسے لوگوں کا تقوی ایسا ہو سکتا ہے جو ارباب معرفت کا ہے؟ کیا ویسا تقوی ہو سکتا ہے جیسا تقوی انبیاء کرام کا ہے؟ یعنی جس طرح سے وہ خدا سے ڈرتے تھے، کیا ہم ویسا ہی ڈر سکتے ہیں؟ یا جس طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے خدا سے، کیا ہم اور آپ اسی طرح ڈر سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں معرفت پر موقوف ہیں۔ جب ہماری معرفت ہی اتنی نہیں تو یہ صفتیں ہم میں آ کیسے سکتی ہیں؟ کیسی صاف سی چیز ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان خاص لوگوں سے یہ کہا کہ تم اس طرح سے ڈرنا کہ جو حق ہے ڈرنے کا، اور عام لوگوں کے لیے کہا کہ تم اتنا ڈرنا جتنا تم سے ہو سکے۔ یعنی یہ تمہارے لیے ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقرب ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس طرح سے جہاد کرنا ہے جو حق ہے جہاد کا۔ کیا ہم اور آپ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ حکم جہاد مالی ہو یا جہاد نفسی ہو یا جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، کیا ہم ان مراحل میں اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں جتنے وہ حضرات ہیں کہ جن کے مراتب
इतने बुलंद हो गए हैं कि फरिश्ते इनसे बेइंतहा पस्त नज़र आते हैं। क्या हम इन चीज़ों को वैसा ही अदा कर सकते हैं कि जो हक़ है अदा करने का? मालूम हुआ कि ये जो हुक्म है हमारे लिए नहीं बल्कि मखसूस है उन हजरात के लिए। खुदा ने तुम्ही को मुंतखब किया है, तुम्ही को तो बरगुज़ीदा किया है। है कोई आदमी जो ये कह सके कि मुझे बरगुज़ीदा किया? हम में से सुबह से शाम तक गुनाहों में मुब्तला होने वाले लोग वो ये कह सकते हैं कि हमें खुदा ने मुश्तबा किया और बरगुज़ीदा बनाया? मालूम हुआ कि ये हजरात मखसूस हैं जिनको खुदा ने चुन लिया है। फिर इसके बाद तुम अपने बाप इब्राहीम ही की मिल्लत हो जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम्हारा बाप इब्राहीम, क्या हज़रत इब्राहीम के ज़माने में इनकी औलाद के सिवा कोई न था? अगर कोई और भी था तो हज़रत इब्राहीम की तबलीग का कोई असर नहीं हुआ था? और लोगों की औलादें तो चली आ रही थीं, इनमें ये इतने मुसलमान सब इब्राहीम की औलाद से ही थे, नहीं है ना? तो यहाँ कहा जा रहा है ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत से। मालूम हुआ मखसूस हैं जिनसे खिताब हो रहा है। मालूम हुआ दुनिया के लोगों के लिए मुसलमान नाम इब्राहीम ने नहीं रखा। मखसूस हैं वो जो ऐसा जहाद कर सकते हैं, जो हक़ से जहाद करने का, जो बरगुज़ीदा हैं, चुने हुए हैं, जिनका बाप इब्राहीम है। इन तमाम सिफ़तों पर जब आप गौर करेंगे तो वो मखसूस हज़रात आपको नज़र आएंगे। और वो कौन है? वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, इसलिए कि अगर बुत परस्ती कर ली तो हज़रत इब्राहीम ने इस ज़माने में ऐसे लोगों का नाम मुसलमान नहीं रखा। उन्होंने इनका नाम मुसलमान रखा है जिनसे कभी भी किसी बुत के सामने सजदा ना हुआ। मकसद ये था कि ये जितनी सिफ़तें हैं वो सब मखसूस हैं उन हजरात के लिए जिनको परवरदिगार आलम ने मुश्तबा किया है और हुक्म जहाद दिया है। फिर अर्ज़ करता हूँ, यही है मुसलमान जिनको जनाब इब्राहीम ने मुसलमान कहा। या और कोई अपने आप को कह सकता है जो इनकी ग़ुलामी अख्तियार करे, यानी इनके सदक़े में मुसलमान हो सकता है? हकीकी मुस्लिम कैसा हो? कहने के लिए तो सारे ही मुस्लिम हैं, मगर मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ज़रा बतलाइए, जितने मुसलमान कहलवाते हैं सारे जन्नत में जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो बतलाइए, इस्लाम रखते हुए फिर ना जाना क्या मायने? तो जो जहन्नुम में जाएंगे इनका इस्लाम नहीं है? नहीं हुआ ना? इस्लाम हो और फिर जहन्नुम हो तो फिर इस इस्लाम का फ़ायदा ही क्या है? खैर, मुख्तसर ये कि हदीस जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह है बहुत से नाम के मुसलमान होंगे जो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। फिर कौन लोग जाएंगे? वही जाएंगे जो ऐसे लोगों से वाबस्ता हो गए हैं जो खुदा की बारगाह में तक़र्रुब हासिल कर चुके हैं और मकाम ख़ास रखते हैं, जिन्होंने खुदा के ऊपर हक़ कायम कर दिया। और वो हक़ क्या है? वो हक़ शफ़ाअत है। खैर मेरे साथियों, जिनकी वजह से इस्लाम बना, जिनकी वजह से इस्लाम की तकमील हुई और दीन अकमल हुआ, आज वो वक्त आ गया कि इबादत के लिए एक रात मोहलत मांगनी पड़ी। ये अल्फाज बहुत मुमकिन है कि आप हजरात को गिरा गुजरे हों, लेकिन क्या करूं कि वाक़या यही है। आज दोपहर के वक्त शुमर मलऊन करबला की सरज़मीन पर पहुंचा है 2000 सवारों के साथ। जिस तरह से और बहुत से वाक़यात अहले बैत को मालूम थे, ये भी मालूम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन होगा, जिसका नाम होगा शिम्र। जब ये लोग करबला में पहुँचे तो उन्होंने घोड़े इधर से उधर दौड़ाने शुरू किए। जिस तरीके से कि कुछ ममालिक में फ्लैग मार्च होता है गाड़ियों का, किसी भी ऐसे वाक़े के रूनुमा होने से पहले या रोकने के लिए।
इस तरीके से उन्होंने घोड़े दौड़ाना शुरू किए और अपनी ताकत का मुजाहरा करना शुरू किया। तो ज़मीन लरजने लगी। बीबियों ने पूछा, ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा, शुम्र आ गया है। बीबियों ने एक दूसरे को देखा और मायूसाना निगाह से देखा। दिन इख्तिताम को था। इमाम हुसैन किसी फ़िक्र में एक कुर्सी पर बैठे हैं जो जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर लगी हुई है। कुछ नींद सी आ गई। शिमर ये हुक्म लाया था इब्ने साद के नाम। इब्ने ज़ियाद के जिस वक्त मेरा ये ख़त मिले फ़ौरन हुसैन पर हमला कर दें। जिस वक्त वो सवार आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब ने खेमे के पर्दे से लगी हुई खड़ी थीं, तो उन्होंने ये जब बात सुनी तो भाई का मुंह देख रही थीं और गालिबन ये ख्याल था कि कल मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा। जब मैदान की तरफ देखा तो नज़र आया कि सवार खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा हाथ बढ़ाकर इमाम हुसैन का बाजू पकड़कर हिलाया। आपने फरमाया, बहन क्या बात है? कहा, भैया फ़ौजें बढ़ रही हैं। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को आवाज़ दी, या अब्बास ज़रा इनसे जाकर पूछें ये खेमों की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या इरादा है? जनाब अब्बास, हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर कैन, मुस्लिम इब्न औसजा, ये सब के सब आगे बढ़े। करीब पहुँच के जनाब अब्बास ने आवाज़ दी, रुक जाओ वहीं। खुदा जाने कैसा असर था। एक मर्तबा घोड़ों की बागें खींचीं और फ़ौज रुक गई। फरमाया, क्यों बढ़ रहे हो? उन्होंने कहा, इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया है कि खैमा हाय हुसैन पर हमला कर दिया जाए, इसकी तामील में हम बढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, यहीं ठहरे रहो जब तक मैं अपने आका से इजाज़त न ले लूँ। जो कुछ वो जवाब देंगे उसके बाद देखा जाएगा। ठहर गए वो लोग। जनाब अब्बास आए। आका ये जंग उस वक्त करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें इसी वक्त हुक्म हुआ है जंग करने का। इमाम हुसैन ने फरमाया, भैया इनसे कह दो मैं एक रात मैं कहीं भाग ना जाऊंगा, मुझे एक रात की और मोहलत दे दो कि मैं जी भर के अपने खुदा को याद कर लूँ। इनमें से एक शख्स ने कहा कि हमें हुक्म नहीं है, हम इजाज़त नहीं देंगे। मगर फ़ौरन ही एक दूसरे शख्स ने कहा कि अगर तुर्को वैलम के काफिर होते और वो हमसे एक रात की इजाज़त मांगते तो हम दे देते। अरे ये तो फर्जंदे रसूल है, ये अगर एक रात की इजाज़त मांग रहा है तो दे देने में क्या हर्ज है। इब्ने साद को खबर की गई, इसने ये बात मंजूर कर ली। अच्छा, अब जंग कल सुबह होगी। मेरे प्यारे साथियों, एक रात मिल गई। मैंने ये कहा था ना कि मांगी हुई रात है। क्या हालत है बीवियों की, क्या हालत होगी, असहाब की क्या कैफियत होगी, इसका तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। बीवियाँ ये समझ रही हैं कल तक ये खेमे कुछ भी ना होंगे। असहाब ये जान रहे हैं कि कल हम ना होंगे। जिस कदर हो सके खुदा की इबादत कर लो। सुबहान अल्लाह, तारीख़ों में ये अल्फाज हैं कि सूखे हुए होंठों से तस्बीह खुदा इस तरह कर रहे थे हुसैन के साथी कि आसमानों ज़मीन गूंज रहे थे। अब मिसाल ये दी जाती है कि जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ फैलती है, इसी तरह से मैदान करबला में तस्बीह की आवाज़ फैल रही थी। इमाम हुसैन की कैफियत ये थी कि कभी असहाब के साथ बैठ के तस्बीह फरमाते थे, कभी थोड़ी देर के बाद खेमों में चले जाते थे बीवियों को तसल्ली देने के लिए। एक अहम वाक़या जो उस शब में हुआ वो ये है कि जनाब ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा से कहा कि फ़िज़्ज़ा ज़रा मेरे माँ जाए को तो बुला लाओ। इमाम हुसैन को फ़िज़्ज़ा ने आवाज़ दी, आका शहज़ादी आलम याद कर रही हैं। इमाम हुसैन फ़ौरन उठ खड़े हुए, गर्दन झुकाए हुए खेमे के दरवाजे पर पहुँचे, पर्दा उठाया, अंदर दाखिल हुए। देखा जनाब ज़ैनब ज़मीन पर सर झुकाए बैठी हैं और रो रही हैं। मेरे अजीज़ साथियों और अहले बैत के मानने वालों, इमाम हुसैन ने बाहर जाकर आवाज़ दी, बहन मुझे क्यों बुलाया है? बहन ने भाई के गले में हाथ डाल दिए, फरमाया, भैया हुसैन ज़रा बैठ जाओ, मेरी एक बात सुन लो। जब से मदीने से चले थे बहुत मर्तबा दिल घबराया, मगर भैया तुमसे ना कहा ताकि ऐसा ना हो कि मेरे भाई को रंज पहुँचे।
اس کے بعد جب مکہ آئے اور مکہ سے نکلنا پڑا تو میرا دل اور زیادہ گھبرانے لگا، مگر میں ضبط کرتی رہی، تم سے کبھی ذکر نہ کیا بھیا۔ میرے بھائی حسین جس دن سے اس زمین پر پہنچے ہیں ہمہ وقت دل دھڑکتا رہتا ہے، مگر میں نے تم سے ذکر نہیں کیا۔ میرے بھائی حسین یہ کیسی رات ہے کہ دل کو کسی طرح سے قرار نہیں آتا۔ میرے بھیا حسین اس وقت میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ امام حسین نے کچھ تسلی دی، بہن ابھی تو پوری رات ہے، کل جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اتنی کیوں گھبرا گئیں؟ تسلی دی، اگر اتنی گھبرا جاؤ گی تو یہ بچے اور عورتیں کس کے سپرد کروں گا؟ یہ بیویاں کس کے ساتھ جائیں گی؟ جناب زینب نے عرض کیا، میرے بھائی سب چیزوں کو جانے دیں، مجھے یہ بتلا دو کہ یہ کون بیوی ہے کہ جو خیمے کے دوسری طرف اکثر فریاد کرتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ میرے ساتھیوں، اصحاب کی یہ کیفیت ہے کہ باری باری کچھ پہرا دے رہے ہیں، باقی عبادت میں مشغول ہیں۔ کبھی پہرا دینے والے عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں، دوسرے ساتھی آ کر پہرا دینے لگتے ہیں۔ کیا دنیا نے کبھی ایسے اصحاب دیکھے ہیں؟ ارے جنگ احد میں رسول کے ساتھ 3 آدمی رہ گئے تھے، اور جنگ حنین میں زیادہ سے زیادہ 9 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ دنیا میں کبھی ایسے دیکھے ہیں کہ جو جانتے ہوں کہ زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن ہونے سے پہلے ہم نہ دیکھیں کہ حسین کا کوئی بچہ زخمی ہوا؟ اس شب کا ایک واقعہ کتابوں میں آ گیا، اور وہ یہ کہ ادھر ابن سعد نے افسران فوج کو جمع کیا اور مشورہ ہو رہا ہے کہ کل صبح جنگ کس طرح سے شروع کی جائے گی تاکہ جلدی ختم، اور ابن زیاد کو خبر دی جائے کہ ختم ہو گئی۔ ایک شخص نے ان میں سے کہا، میں ایسا کرتا ہوں کہ آج رات کو ہی جنگ ختم ہو جائے گی، کل کی ضرورت ہی نہ رہے فوج کے لڑنے کی۔ لوگوں نے کہا، وہ کس طرح؟ اس نے کہا، جنگ کے ختم ہو جانے کا مقصد بس حسین کا قتل ہو جانا ہے، اور ان کے قتل ہونے کے ساتھ ہی جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر حسین آج رات ہی قتل ہو جائیں تو پھر باقی رہ کیا جائے گا؟ اس سے پوچھا گیا، اس وقت کیسے انہیں قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں امام حسین کے پاس، ان پر حملہ کر دوں گا، اس میں شک نہیں کہ میں بھی مارا جاؤں گا، لیکن تم ابن زیاد کے پاس جا کر میرے بچوں کی سفارش کر دینا۔ چنانچہ یہ وہاں سے چلا، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، رات کا وقت ہے، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف ہلال پہرا دے رہے تھے۔ ہلال نے دیکھا کہ کوئی شخص ادھر آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے اس کو ٹوکا، کون ہے جو ادھر آ رہا ہے؟ اس نے اپنا نام بتلایا، اور جب وہ قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امام حسین کے پاس جا رہا ہوں، کچھ میرا کام ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، بے شک جاؤ، وہ امام وقت ہیں، حاجت روائے عالم ہیں، تم جاؤ، مگر یہ تلوار یہاں رکھ کر جاؤ۔ اس نے کہا، دیکھو یہ میری توہین ہے، میں تلوار کے ساتھ جاؤں گا۔ ہلال نے کہا، آج تو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ضروری ہے جانا۔ اس کے بعد اس نے قدم بڑھانے کا ارادہ کیا۔ ہلال نے وہیں سے آواز دی، قدم بڑھایا تو تمہارا سر نہ ہوگا۔ یہ آواز کچھ اتنی بلند ہو گئی تھی کہ امام حسین کے کانوں تک پہنچی۔ امام حسین نے آواز دی، ہلال کون ہے؟ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ جناب ہلال نے عرض کیا، مولا یہ شخص آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک تلوار نہ رکھ دے، مجھے اس کی صورت میں اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ہلال آنے دو، اب امام کا حکم ہے، کیا کریں؟ ہلال نے اسے چھوڑا، مگر کس طرح کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تو امام حسین نے دیکھا کہ اس کی تلوار کے قبضے میں ہلال کا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھ کر امام حسین مسکرائے، ہلال یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، مولا اب کچھ نہ کہیے، میں اس کی تلوار کے قبضے سے ہاتھ نہ ہٹاؤں گا۔ ہلال اس وقت اس کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہلال اس وقت اس کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے عاشور کے دن تم سب کے سب کہاں تھے
जब शिमर खंजर लेकर आया था, कोई न था जो इस पर हाथ रखता। क्या अर्ज करूं, रात गुजर रही है। बस एक वाक़या और आपके सामने अर्ज कर दूं। किताबों में ये चीज़ भी है कि इमाम हुसैन बीवियों के खैमों की तरफ वक्फों से जाते, एक ये मकसद के कोई छुप के इधर ना आ जाए, और ये भी मकसद के ज़रा बीवियों को देखें कि किस आलम में है। बाज़ किताबों में ये भी है कि जब मादर जनाब अली अकबर के खैमे की तरफ गए तो देखा कि अली अकबर कुछ आराम कर रहे हैं। माँ ने एक शमा जला रखी है और पास बैठी हुई अली अकबर की सूरत देख रही हैं। माँ कह रही है, मेरे लाल, कल ये चांद सी सूरत मिट जाएगी। जनाब ज़ैनब के खैमों की तरफ गए, देखा ज़ैनब ने अपने बच्चों को बिठा रखा है और फरमा रही हैं, जो कल कुर्बानी का दिन है, मैं तुम्हें अपने भाई पर कुर्बान करूँगी। बहरहाल इमाम हुसैन रोते रहे ये सारे मामला देखकर। अब इससे आगे नहीं कह सकता। एक दो फ़िक्रे आखिर के सुन लें। कल ना खैमे होंगे, ये बीबियाँ इस वक्त पर्दे में बैठी हैं, कल फर्श पे बैठी होंगी। न इनके भाई होंगे, न इनके बेटे होंगे। सुबह से जंग शुरू होगी। वो वक्त आया कि अब हुसैन का कोई मददगार न रहा। एक मर्तबा फरियाद की आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासरुन यंसुरना, हल मिन मुगीसु मुगीसना। कोई है जो इस आलम बेकसी में मेरी मदद को आए। बीबियों की रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। हुसैन आए। जनाब ज़ैनब ने कहा, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया है। फरमाते, हाँ मुझे दे दो। ले आए मैदान में, बच्चे के तीर लगा। हुसैन ने कब्र बनाई, 2 रकत नमाज शुक्र अदा की, और शुक्र हमेशा नेमत पे किया जाता है। ये वही हस्तियां हैं कि जो मुसीबतों में को भी नेमत समझती हैं और उस पर शुक्र अदा करती हैं। फिर इसके बाद खेमे में आए और आखिरी मर्तबा खेमे में आए। अब ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, सुबह के वक्त घर भरा हुआ था, इस वक्त कोई नहीं है। अली अकबर भी सीने पे बर्छी खाए हुए सो रहे हैं। अब्बास भी नहर के किनारे बाजू कटाए हुए आराम कर रहे हैं। इमाम हुसैन खेमे की तरफ तशरीफ़ लाए और अब वो फरियाद की आवाज़ है। दुनिया में कोई न था जिसके कान में ये आवाज़ न पहुंच रही हो, हल मिन नासरुन यंसुरना। इमाम हुसैन ने फरमाया, कोई है जो इस मुसीबत को हरम रसूल से दूर करे, कोई है जो मेरी फरियाद को पहुँचे। हुजूर वाला ये जो 1-2 मरतबा की आवाज़ बुलंद की और किसी तरफ से जवाब ना आया, मेरे ख्याल में जो अंबिया खड़े होंगे मैदान करबला में, उन्होंने लब्बैक कहा होगा, मगर हुसैन ने फरमा दिया होगा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, ये दूसरी मरतबा फरियाद की आवाज़ बुलंद हुई। खेमों से बीबियों के रोने की आवाज़ बाहर आई। अब जो देखा तो ये क़यामत देखी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो ग़शी के आलम में थे, एक मरतबा उठे, अपनी तलवार पकड़ी, घुटनों के बल चले, खैमे का पर्दा उठाया, बाहर निकल गए। उम्मे कुलसूम ने पीछे से कुर्ता पकड़ा, कहा, बेटा किधर जा रहे हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मुझे छोड़ो, मेरा मजलूम बाप मदद के लिए पुकार रहा है। इमाम हुसैन ने जब ये देखा, तशरीफ़ लाए, आवाज़ दी, बहन मेरे बेटे को ना छोड़ना, नस्ल इमामत मुनक़ता हो जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खैमे में ले गए। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक चीख मारी, फिर आंखें बंद हो गईं। अच्छा बस आखिरी मंजिल में पहुंच जाऊं। वो वक्त आया कि हुसैन घोड़े से गिरने लगे। बस मेरे साथियों, इसके बाद ख़त्म संभला ना जा सका, क्योंकि पेशानी का तीर जब निकाला तो खून का फव्वारा जारी हो गया। उसके बाद एक तीर सीने पर लगा, वो पीछे से निकला और खून का फव्वारा जारी हो गया। हुसैन का घोड़े पर संभलना मुश्किल हो गया। एक मर्तबा ज़मीन की तरफ देखा। फरमाते हैं, मेरे वफ़ादार घोड़े, ये घोड़ा रसूलुल्लाह की सवारी में रह चुका है। फरमाते हैं, मेरे नाना के वफ़ादार घोड़े, मैं अगर यहाँ गिर गया तो खैमे में सामने मेरी बहन खड़ी है और वो दरवाजे से मुझे देख रही है। अगर कातिल ने आकर मेरा गला काटा, मेरी बहन मर जाएगी, मुझे इस जगह न ले जा।
जहाँ से खेमे दिखलाई न दें। घोड़ा एक नशेब के मकाम की तरफ पर ठहरा जाकर आपने आँख खोल के देखा, कहा कि हाँ, यही वो ज़मीन है जो मेरे नाना ने मुझे दिखलाई थी। घोड़े ने अपने घुटने टेक दिए। हुसैन एक तरफ को झुके और कहा, क्या अर्ज़ करूं। फ़ौरन ज़मीन पर न पहुंच सके, ज़बान से निकलती नहीं है बात। ज़मीन से लगना था कि एक मर्तबा ज़मीन को धचका सा लगा, फ़ज़ा का रंग बदला। ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई ये देखकर घबरा गईं कि आज ज़ैनब का कोई नहीं है। ये समझकर कि भाई कत्ल हो गए, एक मर्तबा खेमे से बाहर आ गईं। चादर का एक सिरा ज़मीन पर लगता हुआ एक जगह पहुंची। कुछ बुलंद जगह थी जिसे तिलाए ज़ैनबिया भी कहते हैं। वहां से देखा हुसैन मजलूम गरम ज़मीन पर तड़प रहे हैं। मेरे साथियों, ज़रा तसव्वुर करें ज़ैनब किससे कहे। एक मर्तबा देखा कि एक शख्स फ़ौज से निकला खंजर लिए हुए। ज़ैनब समझी कि ये मेरे भाई को कत्ल करने के लिए आ रहा है। हाय बेकस बहन, क्या करे, किससे कहे। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद की, या मोहम्मदा, या अलिया, बाबा नजफ से आओ, नाना मदीने से आओ। इमाम हुसैन के कान में आवाज़ पहुंची। सर उठाया, देखा कि बहन खड़ी हुई फरियाद कर रही है। इमाम हुसैन ने इशारे से कहा, बहन अभी मैं ज़िंदा हूँ, खेमे में चली जाओ। भाई का हुक्म। ज़ैनब खेमे में चली गईं। खेमे की तरफ बस 2-3 कदम चली, फिर आवाज़ दी, या मोहम्मदा। अरे इसी तरह से खेमे में से जब पहुंची, भाई का हुक्म। ज़ैनब चली खेमे की तरफ, बस 2-3 कदम चली, फिर आवाज़ दी, या मोहम्मदा। अरे इस तरह से खेमे में जब पहुंची, थोड़ी देर के बाद ज़मीन में ज़लज़ला तारी हो गया। घबरा गई, ये ज़लज़ला कैसा। घबराई हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में पहुंची। एक मर्तबा बाजू पकड़ के हिलाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन उठो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आँख खुली। फरमाया, फूफी जान क्या है। कहा, देखो ये ज़लज़ला आ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, फूफी जान खेमे का पर्दा ज़रा उठाइए। अब जो पर्दा उठाया तो क्या देखा कि हुसैन का सर नोके नेज़े पे बुलंद है और फ़ौज खुशियाँ मना रही है, अला लानतुल्लाह अलल काज़िबीन।